Hello students, hope you all are healthy and welcome once again to my class. This video is for class 7 and today we'll continue our chapter 4 of geography, that is major landforms. In our last class, we learned about the exogenic forces that act in two ways. First one is weathering and the second one is erosion. So, weathering is a process of breaking off rocks on Earth due to heat, cold, frost, chemical reactions, plants, and animals. And we learned about erosion. So, erosion is a consequence of weathering. When rocks are weathered, when rocks are broken down into small pieces due to heat, cold, or frost, they are then carried away. जब इरोजन में क्या होता है, the rocks which are already broken down are carried away by the forces like rivers, wind, sea waves, ice, etc. and deposited elsewhere. So first topic was the working of a river, how erosion process takes place with the force of river. So in this topic we learn about how a river is formed when several small streams join together to form a single flowing body, and the point where these streams join and form a river is called a source. And we also learn about the vertical fall of rivers forms of water, and in facts and informations we learn the highest waterfall in the world, that is Salto Angels Falls in South America. And we learn how the rocks and eroded materials and deep valleys are formed, known as V-shaped valleys. And we learn about meanders. The rivers start to twist and turn and forms a meanders. Meander, what are meander? A meanders is one of a series of regular curves, bends, loops in the channel of a river. तो जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, देयर इज़ अ फोटो गिवन, अ पिक्चर, एन इमेज ऑफ अ meandering रिवर. तो meanders क्या होते हैं? ये जो कर्व, ये जो घुमावदार आप इमेज देख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? meanders. Now we'll continue in this chapter our topic. The river banks are continuously eroded and circular loops or bends deposited eroded material more and more. जो रिवर बैंक्स होते हैं, जो नदियों के किनारे होते हैं, वो लगातार इरोड होते रहते हैं, कंटिन्यूसली इरोड मतलब छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन होते रहते हैं. एंड सर्कुलर लूप्स और बेंड्स डिपॉजिटेड इरोडेड मटेरियल मोर एंड मोर. और ये जो लूप्स होते हैं, बेंड्स, ये जो घुमाव, ये जो कर्व होते हैं, सर्कुलर कर्व होते हैं, इनकी वजह से जो इरोडेड मटेरियल होते हैं ये डिपॉजिट होते जाते हैं और धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स लगातार, ये ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल यहाँ से इरोड होते जाते हैं एंड कट ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर फॉर्मिंग इट्स ओन बो शेप्ड लेक्स. और ऐसे सर्कुलर लूप बेंड की वजह से ये लगातार कटते जाते हैं, कट ऑफ होते जाते हैं अपनी मेन रिवर से, मेन नदी से, और ये बो का शेप ले लेते हैं. और इसको हम क्या जानते हैं, किसके नाम से फिर जानते हैं? ऑक्सबोल लेक. ऑक्सबोल लेक का मतलब होता है, एन ऑक्सबोल लेक इज़ अ लेक दैट फॉर्म्स व्हेन अ meander इज़ अ इन अ रिवर इज़ कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द रिवर. जब एक meander, एक सर्कुलर पार्ट अपनी मेन जो रिवर होती है, मेन नदी से कट होके अलग हो जाता है, अलग रह जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सबोल लेक. उसको, देयर इज़ अ पिक्चर ऑल्सो आई हैव गिवन यू विच यू कैन सी. एंड नाउ अ फ्लड प्लेन. फ्लड प्लेन बेसिकली अगर आप एक नॉर्मल भाषा में देखें तो फ्लड प्लेन क्या होता है? फ्लड के आने के बाद, फ्लड क्या होती है? बाढ़. बाढ़ के आने के बाद जो प्लेन का फॉर्मेशन होता है, जो ज़मीन, जो प्लेन बनती है, वो क्या कहलाता है? फ्लड प्लेन.
So a floodplain is a flat area on the edge of a river. नदियों के किनारे बाढ़ के आने के बाद जो प्लेन एरिया होता है, जो फ्लैट एरिया होता है, दैट इज़ नोन एज फ्लड प्लेन. And how it is formed? So a flood plain is formed when the soil in large amount settled on the river floors when a river overflows. तो फ्लड प्लेन्स कब बनते हैं? जब लार्ज भारी मात्रा में सॉयल इकट्ठा हो जाती है. कहाँ पे? नदियों के किनारे. ठीक है. बाढ़ के आने के बाद जब बाढ़ का पानी चला जाता है तो उसके बाद बहुत सारी सॉयल या जो भी डिपॉजिट होते हैं जो कि फ्लड के साथ आ जाते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और उससे एक प्लेन बनता है. दैट इज़ नोन एज अ flood plain. The nearby areas are flooded but the soil deposited on the valley floor is very fertile. The nearby areas are flooded but the soil deposited, आसपास के एरिया फ्लड मीन्स बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन जो मिट्टी जो सॉइल डिपॉजिट होती है फ्लड की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है. मीन्स इट इज़ वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर. Because of deposition, the banks are raised high. There is an image given. इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे किनारे जो हैं वो ऊपर उठ गए हैं. मीन्स द banks are raised high and are called natural levees. और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? Natural levees. When the river approaches the sea, it flows decreases and it is divided into small streams. जब एक रिवर एक नदी को एक सी को ज्वाइन करती है, एक समुद्र को ज्वाइन करती है, तो उसका जो फ्लो है, बहाव है, वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है. एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्ट्रीम्स, और ये छोटे स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाता है. उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज ब्रांचेस. द फ्लो ऑफ रिवर is so slow that all the eroded materials starts to deposit. अब क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि जब रिवर सी को ज्वाइन करती है तो उसका फ्लो स्लो हो जाता है. इतना स्लो हो जाता है कि जो भी मटेरियल वो अपने साथ बहा के ले जा रही थी, जो भी इरोडेड मटेरियल वो अपने साथ ले जा रही थी, कैरी अवे कर रही थी, उसको वो एक जगह पे डिपॉजिट होने लगता है. टुगेदर बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरीज. As each distributary has its own mouth, the triangular land with all the deposits is formed and is known as delta. और इसी डिपोजिशन की वजह से एक ट्रायंगुलर लैंड का फॉर्मेशन होता है, and that triangular land is known as delta. Here is an image also given of delta. So what is delta? Delta is a landform created by deposition of sediments carried by the rivers. Now the next one topic is working of sea waves. How sea waves work as erosion, work for erosion. मतलब erosion का काम कैसे sea waves करते हैं. So the large water bodies like oceans and seas give rise to coastal landforms through erosion and deposition of rocks. Tides, storms and currents further help in this process. तो sea waves जो होती हैं वो यहाँ पे erosion का काम करती हैं, deposition का काम करती हैं. और इसमें कौन सी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं? Tides, storms and currents. When strong and high waves attack the rocks regularly, जब ऊंची ऊंची जो waves होती हैं वो लगातार अटैक करती हैं, लगातार पत्थरों से होके गुज़रती हैं, तो जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, जो रॉक्स होती हैं, वो उसमें क्रैक आने लगते हैं, दरारें आने लगती हैं. और लगातार अटैक की वजह से, लगातार पानी के या सी वेव्स के गुज़रने की वजह से, उसमें लगातार गुज़रने की वजह से वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं और छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होने लगती हैं. As the cracks become wider and larger, hollow cavities are formed. और जैसे जैसे ये क्रैक्स जो उसमें दरारें आती हैं वो और ज़्यादा बड़ी होती जाती हैं और ज़्यादा लार्जर होती जाती हैं, उसमें एक हॉलो कैविटी, एक होल होता जाता है.
दीज कैविटीज़ आर कॉल्ड सी केव्स। और इसको इन्हीं कैविटीज़ को हम क्या कहते हैं, जैसे हमारे दांत में कैविटी हो जाती है तो हमारे दांत में एक होल हो जाता है, छेद होने लगता है, वैसे ही रॉक्स में जब कैविटीज़ बन जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सी केव्स। ओवर टाइम द हीटिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग वेव्स मेक दीज कैविटीज़ ग्रो लार्जर। और लगातार वेव्स के हिट करने की वजह से ये कैविटीज़ और ज़्यादा बड़ी होती जाती हैं। एंड ओनली द रूफ ऑफ द रॉक्स रिमेन। और बाद में सिर्फ जो केव था, जो कैविटी थी, उसकी सिर्फ ऊपर का हिस्सा बचता है, रॉक्स के सिर्फ ऊपर का हिस्सा बचता है। एन आर्क टाइप स्ट्रक्चर इज फॉर्म एंड इज नोन एज सी आर्क। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, सी आर्क के नाम से जानते हैं। फर्दर द इरोजन टेक्स अवे द रूफ एंड ओनली वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स रिमेन। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्टैग्स। एंड बाद में क्या होता है, द इरोजन टेक्स अवे द रूफ। और इरोजन की वजह से जो रूफ है, जो रूफ रॉक की थी, वो भी गायब हो जाती है। एंड ओनली वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स। और बाद में सिर्फ वॉल मतलब दीवार का स्ट्रक्चर बचता है, जिसको हम किस नाम से आते हैं, सी स्टैक। देयर इज़ एन इमेज गिवन ऑल्सो ऑफ सी स्टैक। अ सी क्लिफ इज वर्टिकल वॉल ऑफ रॉक फेसिंग द सी वर्टिकली। अदर दैन इरोजनल वर्क ऑफ सी वेव्स, द डिपोजिशनल वर्क्स फॉर्म्स बीचेस। ना सिर्फ सी वेव्स इरोजन का काम करती हैं, मीन्स चट्टानों को छोटे पार्ट में तोड़ के सिर्फ कैरी अवे करने का काम करती हैं, बल्कि ये डिपोजिशनल वर्क भी करती हैं। इन इरोडेड मटेरियल्स को डिपॉजिट करने का काम करती हैं, जिससे क्या बनते हैं, बीच बनते हैं। बीचेस आर फॉर्म्ड विद अ काम सी। जब समुद्र शांत होता है, उसकी जो फ्लो होता है स्लो होता है, तो जो भी इरोडेड मटेरियल्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और इन्हीं की वजह से क्या बनता है, बीच बनता है। द सैंड, ग्रेवल एंड पेबल्स आर डिपॉजिटेड। जो भी सैंड पार्ट है, जो ग्रेवल होते हैं, पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे बालू के कण होते हैं, पत्थर होते हैं छोटे छोटे, आर डिपॉजिटेड ऑन द शोर्स विथ विंड्स ऑफ लो वेलोसिटी forming the beaches. A sandbar is a deposited land on the seafloor near the coast. Sometimes a small water body is trapped by sandbars and coasts and behaves like a lake. These water bodies are called lagoons. Now our next one topic is work of ice. So this topic will continue in our next class. Till then, read the chapter and complete your homework questions. Now, don't forget to give your attendance in the comment section. Write down your name and your class and your section. Thank you, class.